बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में यौम वालिदैन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी अटारनी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान थे। ये है एग्जीबिशन। यहाँ के कैडेट्स ने बड़ी मेहनत के साथ मुख्तलिफ जो आलात हैं वो तैयार किए हैं और उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। मैंने भी उनसे मुकम्मल गुफ्तगू की है, वो यहाँ आपको सुनाऊंगा। तासरात हैं, मुकम्मल रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। So this is CCA Sculpturing Club. This year we made different things using different techniques such as mosaic, closing and paper crafting, where is resin. The elephant you see, the maple leaf, the man with colorful emotions. These are made with mosaic art, mean using taking different pieces and joining them and making a shape. Whereas this low relief calligraphic sculpture, we use different colors, resin and epoxy to make this. We have created type of natural geodes, and the feather you see, this is closine art, which is anciently used by ancient Egyptians, and also the traditional art of China. We made it using copper wires. And that's all about sculpturing. Thank you. एग्जीबिशन में आए हुए वालिदैन ये देख रहे हैं मुख्तलिफ आइटम और बच्चों को दाद दे रहे हैं। ये आपको मंजर दिखाया है। Assalamu alaikum, my name is Hassan. I'm the Vice President of Robotics Club. This year we have made these 5 projects, namely the fully automated car factory over here, followed by the world of complexity, also known as the hexapod. Then over here we have the multi-target acquisition defense system. Then here we have the PID gyro balancers. And over there, the Terpillion clocks, the world of precision. And at the last, over there, last but not the least, we have the smart passengers transport. Now coming here to the first project, this car factory. This marvel of creativity and engineering hums with the energy of these 4 motors and this programmable brick working together in perfect harmony. Now if you look over here, this EV3 brick, it is the brilliant brain behind all these programs. And what it does is that it meticulously coordinates with each movement, ensuring that every stage of assembly is carried out with precision. Now, this is the vertical warehouse, also made from the Lego EV3 crate. And it has been inspired from the German car company BMW. Now, if you marvel through its towering structure, you will see the Lego lift over here. And this lift, it is used to transport the freshly manufactured cars between different floors. So that's all from Robotics Club, and I thank you for your patient listening. Welcome to our stall. This is Electronics Club. So this year Electronics Club has come up with some awesome projects. First up, this Jenna, a smart AI-powered robot which can interact with you in real time, can react to the environment and can move around, can pick up some simple objects. So she has some practical work like she may be used as a receptionist in offices, or maybe delivering a cup of coffee within an office or some documents, or maybe used in CCA dormitories as prep, or in cafeterias for delivering food, or in restaurants for serving guests. Next up was this CNC drawing machine which can make anything you can fit in this canvas. These are some drawings made by this machine, and this machine is controlled by some steppers and this Arduino. And next was this free space optical communication setup, and this type of setup was used by NASA in 2021, in which they sent a video 91 million miles through space. And these are some side projects. This one is a voice control card which is controlled by our voice, and this one is a gyro control card which is controlled by our gestures. That's all for this year on Electronics Club, and this year we are proud to say that we stood first. इस साल के लिए जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो एक स्मार्ट ब्रिज है। तो इसका बेसिकली काम ही होता है कि जब भी किसी रिवर या कनाल के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाता है तो बारिश या प्रेसिपिटेशन की वजह से जो वाटर होता है ना, एक सेट लेवल से ज़्यादा राइज हो जाता है। इसका मसला ये होता है कि जो पानी होता है ना, वो ब्रिज के ऊपर आने का खदशा होता है। इसकी वजह से जो ट्रैवलिंग होती है, सारी शिपमेंट होती है, वो रुक जाती है, सारे ख़राब हो जाते हैं। इसकी वजह से ना हमने एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ किया है, तो ये जब भी पानी को सेंस करता है ब्रिज ऊपर उठ जाता है अपने आप। इसके नीचे हमने सर्वो लगाए हैं और इसके साथ आर्डिनो का कोड है। आर्डिनो का कोड जैसे ही सर्वो के पास जाता है तो वो मुड़ के खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो ब्रिज होता है या तो उसके ऊपर पानी आता ही नहीं है, या तो जो नीचे रिवर होता है उसके ऊपर एक्यूमुलेट पानी होता है, वो स्लाइड होकर नीचे आ जाता है। और जब ये पानी एक सेट लेवल से नीचे जाता है
तो ब्रिज वापस बैठ जाता है और ट्रैवलिंग अपने आप हो जाती है। ये हमारा सर। इस साल हम लोगों ने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे जियो मॉडलिंग क्लब में। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो ब्लेड आइलैंड का है, जो कि लेक ब्लेड में वाक़ स्लोवेनिया में। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा मॉडर्न हाउस, जो कि आजकल के जदीद दौर होते हैं उनके तर्ज पे एक मॉडल बनाया, जो कि हमारे 9th और 10th के बच्चों ने बनाया। उसके बाद ताजमहल के हमने मॉडल बनाया है, जो कि अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये असल में हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये अगले साल मुकम्मल होगा। ताजमहल जो कि आगरा के अंदर वाक़ है, उत्तर प्रदेश के ज़िले में, तो हमने उसका एक मॉडल बनाया है जो मोस्टली कंप्लीट हो गया, बस ये डेकोरेशन वगैरह भी बाकी है, तो वो इंशाल्लाह अगले साल तक मुकम्मल है। जो हमने बनाया लेक ब्लेड, इसका ये था कि खूबसूरत है और एनवायरनमेंट को शो कर रहा है। बाकी इसकी हिस्ट्री ये है कि इधर ये 3-4 बिल्डिंग्स हैं। सबसे पहले चर्च ऑफ एजम्पशन है, उसके साथ बेल टावर है, फिर उसके बाद ये एम्बेसी है और यहाँ पे कैफ़े, और फिर ये चैपल है जहाँ पे इबादत वगैरह करते हैं। चर्च ऑफ एजम्पशन जो है उसकी हिस्ट्री ये है कि जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनका ये मानना है कि हज़रत मरियम की वफ़ात के बाद उन्हें आसमानों में अल्लाह ताला ने उठा लिया था। तो ये एक एजम्पशन, एक थ्योरी है जिसको रिप्रेजेंट करने की, जिसको डेडिकेट किया है उस चर्च में। इसके अलावा जो हमने ये बनाया है, पानी को हमने शो करने के लिए एपॉक्सी का इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ हमने चिप बोर्ड के ऊपर टिश्यू पेपर्स लगाए हैं जिसकी वजह से वेवी सा टेक्सचर आ रहा है। तो यही सब कुछ है। ट्री ऑफ लाइफ हमने हाथ से काटा है। इसमें हमारे पास फ्रेड सॉ था। फ्रेड सॉ वी यूज्ड इट टू कट द प्लाईवुड, और इसके बाद हमने इसके ऊपर एम्बर की लेयर की है, पॉलिश की लेयर की है, पीछे शीशम का बैकग्राउंड ऐड किया है, और फिर पीछे हमने LEDs नियॉन लाइट्स स्ट्रिप में लगा दी हैं। बाकी ये जो कैलीग्राफीज आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे हमारे क्लब के बच्चों ने हाथ से काटी हैं और उसके बाद हमने फ्रेम करा के यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। आगे दरमियान में ये लैंप आपको नज़र आ रहा है, और ये जो है ये विनियर प्लाईवुड के ऊपर हमने विनियर को लगा के इसको एडजस्ट किया है। फिर बर्ड फ्रेम्स हैं, ये भी सारा हमारे क्लब के बच्चों ने अपने हाथ से काटा और ये बनाया। This is the Indus Civilization Society. For the year 2024-25, we have worked on 3 projects. The first one was a research-based project focused on exploring the influence of the Indus practices on the modern era. So as you can see, we have transitioned our board into an ancient and modern transition impact. Firstly, we have touchstone gold. Now, the touchstone gold was a method used to test the purity of gold back then by comparing streaks of gold with references streaks, by which the civilizers could know at the time what the purity of gold is exactly in carats. We have modern image depicting the use of the touchstone gold in the modern era, which is mostly prominent in archaeological sites as well as in jewelry shops. Secondly, we have kind of a bred cattle which is known as Indian Ayoks. So Indian Ayoks were bred mostly in the Balochistan region in the premature Harappan civilization. And as you can see in the modern side, there has been quite a bit of transformation that was due to the change of diet. Thirdly, we have weight systems which were used to test the weight of an unknown object by comparison with some cubical weights. Thirdly, we have some seals. So actually these seals were used for trade purposes as well as for symbolism of certain ritualistic activities. And the good thing to know about that is the exact script on these seals has not yet been deciphered. We have got 3 seals with us today: the unicorn, the rhinoceros, and a sacred ritual seal. Lastly, we had a map which was focusing on the resettlement of the key areas of the civilization. We focused on Ganges, Gujarat and Balochistan, and our research explored the regions. This is Makerspace Club. ये हमारा Makerspace Club है और I am the president of this club. और हमारा ये क्लब ओल्ड अब्दालियंस ने उनकी तरफ से फंडेड है, 16th एंट्री, और इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। वन इज़ 3D प्रिंटर, अदर वन इज़ आर्डिनो एंड अदर वन इज़ लेज़र कटर। और ये सबसे पहले हमारा फेरिस व्हील है जो लेज़र कटर की एक बहुत बड़ी ग्लिम्स है। फेरिस व्हील इट्स लाइक मोर ऑफ डेकोरेशन पीस और थोड़ा सा फंक्शनल भी है। इसमें होता है लेज़र कटर में हमारे पास हाई इंटेंसिटी बीम्स होती हैं जो पेनिट्रेट कर देती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। आपको मैं इसको फंक्शनल करके दिखा दूं, इट्स लाइक मोर ऑफ डेकोरेशन पीस। जस्ट ये इस तरह से जी, और इसके एक एक जो जंक्शन है, जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इसको बनाने से ज़्यादा टाइम इसको असेंबल करने में और अलाइन करने के अंदर लगाया गया है, जो कि इसकी एक ब्यूटी और खूबसूरती है। और लाइक इट इज़ हमारा एकेडमिक ब्लॉक, वेरी ओन एकेडमिक ब्लॉक ऑफ कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। और इसके अंदर 3D ऑब्जेक्ट 3D इसको पहले सॉफ्ट फॉर्म के अंदर प्रिंट किया गया, देन उसके बाद इसको फिजिकल फॉर्म में चेंज किया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह कि इसको 191 आवर्स लगे हैं इसको बनाने के अंदर। और एट अ टाइम वी वर जस्ट एबल टू प्रिंट 4 विंडोज ऑफ दीज क्लासेस। और इतना बड़ा मॉडल इतने से प्रिंटर में बनाना इट्स इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल पहले साल में हुआ कि हम एक 3D मॉडल को खुद सॉफ्ट के अंदर प्रिपेयर भी करें और देन वी आर एबल टू प्रिंट इट।
सो उसके अलावा हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो इसकी बॉडी, एक प्रोजेक्ट है, इसकी बॉडी जो है वो 3D प्रिंटर से बनाई गई है और बाकी इसके पीछे सेंसर और आर्डिनो और वायरिंग हुई हुई है। और इसको आप लैपटॉप के अंदर कोई भी कमांड देंगे तो ये आपकी कोई भी स्पेलिंग ऑब्जेक्ट और कोई भी लोगो को बनाने में कामयाब हो जाएगा। जैसे कि कल हमने एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का लोगो बनाया इसकी मदद से। सो एक ये LED क्यूब है 125 बल्ब्स का। Earlier on it was to be of 1000 bulbs, लेकिन with the due to the lack of time we were able to make it almost 125 bulbs। LED क्यूब है हमारा जो कि Arduino से बना है, इसके अंदर Arduino सेटिंग हुई है सारी। These are the wiring connections. So this is all about our Makerspace Club funded by 16th Century Abdalians of Cadet College Hassan Abdal, and I am the president of this club. Thank you. तो हम लोग ना मूवी मेकिंग क्लब है, तो हमारा बेसिकली ये काम होता है कि हम लोग ना वीडियोस वगैरह बनाते हैं और उन वीडियोस में हमारा एम होता है कि हम लोग ना CCH की ना जो कल्चर है ना उससे मतलब हाईलाइट करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो की एग्जांपल है जो हमने बनाई है। इस वीडियो में हम लोगों ने जो कॉलेज है ना उसका जो सारा वो कल्चर है ना वो दिखाया है, मतलब जो यहाँ पे रोज़ एक्टिविटीज़ होती हैं वो तकरीबन सारी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और तो जैसे ये वाली वीडियो देखिए, इसमें मतलब यहाँ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं सारी। उसके अलावा हम लोगों ने ये एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। यहाँ पे एक माइल टेस्ट होता है, इसके बारे में ना हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। जैसे ना थोड़ी लंबी है इसलिए मतलब दिखाऊंगा नहीं, लेकिन बेसिक ऐसी है कि एक बच्चा होता है अनफिट होता है, जब वो भागता है प्रैक्टिस करता है तो वो पास हो जाता है। उसके अलावा जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था ना वो था कि हम लोगों ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, हमने ना फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं हमने उनके लिए अप्लाई किया था। जैसे हमारा प्रेसिडेंट है वो एक अज़रबैजान के फिल्म फेस्टिवल के सिलेक्ट हुआ था ना। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर फिल्म फेस्टिवल इन इटली। सो वी ऑल टेंड टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक फील्ड्स के मतलब कोई एडिटिंग सीख लेते हैं, कोई वीडियोग्राफी सीख लेता है। तो मैंने पर्सनली ना स्क्रीन राइटिंग सीखी थी, तो उसकी बेस पे जो सारी स्क्रिप्ट्स हैं ना वो मैंने लिखी थी। तो वैसे यही हमारा मेन प्रोजेक्ट था। Assalamu alaikum. Welcome to Cadet College Hassan Abdal Computer Club. This year we had a plethora of ideas, out of which 7 of these were brought to reality. First to come is Path to Abdalian. Path to Abdalian is basically an LMS designed and tailored to the needs of those applying to Cadet College Hassan Abdal. It decreases the cost of studying by 90% from the usual $150 to just $15 per month. Then we have the photo finder. This unique project has been recognized by the international platform of consensus, and it is first of its kind in Pakistan. This project has the capability to find pictures of one individual from 100 or 1,000 pictures. It reads the embeddings of a face and also from those in the present in the pictures and matches them. Furthermore, we have Smart 2 Scholar, which is an AI that helps the students and Cambridge learners to study and teaches them how to answer specific questions, especially for those studying Islamiyat and Pakistan studies. Next, we have Vexfire. Vexfire is a 3D simulation game similar to that of Fortnite, but it is a blockchain game that is connected to Bitcoin and other cryptocurrencies, and we have developed a special coin known as Vex coin, which is connected to this, and its earnings are embedded, and we can convert that into cryptocurrency. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह लवाब है। तो हमारी सोसाइटी का नाम है कंपैरेटिव रिलीजियस सोसाइटी। हम 2020 में फाउंड हुए थे और हमारा गोल रहा है इंटरफेस हार्मनी प्रमोट करना अक्रॉस द नेशन। जैसा आपको पता है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमारा गोल रहा है उनको रोकना और पीस प्रमोट करना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिम्बलाइज करते हैं ये तमाम दीन है, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ज्यूज़म, रोशनिज़म, क्रिश्चियनिटी, वो साथ मिलकर रहते हैं हार्मनी में। हमारा गोल ये है कि हम सारे मिलकर रहें, लड़ाइयाँ ना हो, अगर इसका ख्याल रख पाएँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो पुल बैक होते रहेंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। जैसे इस साल का प्रोजेक्ट था, हम इंस्पायर हुए आइंस्टाइन की कोट से कि ऑल रिलीजन्स, आर्ट्स एंड साइंसेज आर वर्किंग ऑन द सेम ट्री। हमने यहाँ दरख्त मारने की ट्राई की है। हम यहाँ शो करते हैं कि जो इंसानियत है डाइवर्ज करती है साइंस और रिलीजन पे। हमने यहाँ बताया कि नज़रिया क्या है दीन का कायनात के बनने पे, हम वहाँ बताते हैं कि नज़रिया क्या है साइंस का कायनात के बनने में। बहुत शुक्रिया। इस साल हमारा मेन प्रोजेक्ट LG से बायोडीजल बनाना था। अब हमने क्या किया, हमने किया कि इसे हमने प्रोवाइड किया है ग्रोथ मीडियम। अब इस ग्रोथ मीडियम ने नेसेसरी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड एंड अदर्स, और रेड एंड ब्लू लाइट। उसके बाद हमने इसको ड्राई कराया। अब ड्राई करने की रीज़न इसमें से मॉइस्चर को निकालना था। अब मॉइस्चर अगर आप नहीं निकालेंगे तो डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस होंगी। फिर इसके बाद हमने ग्राइंड किया। ग्राइंड और ड्राई में 2 रीजंस हैं।
अगर हम ड्राई यूज़ करेंगे तो रिएक्शन टाइम होता है 8 to 10 आवर्स, लेकिन अगर हम ग्राइंड यूज़ करेंगे तो इसका टाइम होता है इट रिड्यूसेस टू 2 to 3 आवर्स। फिर इसके बाद अगर हम देखें इस अपना राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारे पास एक लिक्विड है, बेसिकली इसमें मेथनॉल है जो कि रिएक्ट कर रहा है ग्राइंडेड एलजी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और फिर इसके बाद हमने इसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया राउंड अबाउट 45 to 60 डिग्री सेल्सियस, और मेथनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 60 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब है मेथनॉल को एवेपोरेट कर जाना चाहिए, लेकिन वो एवेपोरेट नहीं कर रहा क्योंकि कंडेंसर लगाया हुआ है। फिर इसके बाद हमने क्योंकि ग्राइंडेड यूज़ की है, ग्राइंडेड यूज़ करने की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन टाइम 2 to 3 आवर्स था, तो उसको हमने आफ्टर 2 to 3 आवर्स हमने सेपरेट किया थ्रू फिल्टर वेपर एंड सेपरेटिंग फनल। अगर आप इसे करीब से देखें तो इसके अंदर 2 लेयर्स हैं, अपर लेयर्स ऑफ बायोडीजल एंड द लोअर लेयर्स ऑफ ग्लाइसरीन विच इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फिर उसके बाद इस अपर लेयर को हमने सेपरेट कराया और नष्ट भेजा। नष्ट भेजने के बाद उन्होंने गैस क्रोमेटोग्राफी कराई और उन्होंने कहा इसके अंदर 76.93% बायोडीजल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आर्ट्स क्लब। मेरा नाम मोहम्मद यज़ीम है and I'll be guiding you towards the arts club. Over here we have the streets of Jerusalem, and moving on, our artists this year have created these abstract arts, glass arts, and following these sketches. Our artists also participated in major international conferences on which this portrait to the left has received an honorary mention. Over here our artists have showcased the 3 major human struggles: the struggle against the past, the struggle of finding the right path, and the struggle against hunger. Our artists have also created these decorative items present in front of us. This was a small briefing of the Arts Club. I thank you. May I repeat myself? This one here is F117 Nighthawk. So basically, being in the F series, it was a bomber, so it caused great devastation. Secondly, this one here is F-22 Raptor. Increased cross-sectional area, decreased wingspan, allowed it to withstand the supersonic boom. It could cross the speed of sound. And secondly, it was undetected in the radars. This one here is a World War II plane, the Spitfire, made by the junior cadets, just a skeleton model. And here is a VTOL. So imagine a plane taking off from a helipad and then flying with the speed of a plane. So in World War II, when there was no space to build runways, they just built those VTOLs, taking off from a helipad and then flying like planes. And here we have is a drone. Basically, this one is a advanced drone, so we can either fly it from our remote, or we can just run a program and it can do its task while we are talking. And lastly, we have this spying ornithopter. Basically looking just like a bird, but it's not a bird, it's more than that. I can control it here from my remote, and it is used for spying purposes. That's all. Thank you. Basically, our theme for this year was habitable Earth. Related to it, we made 2 models. Basically, Dyson Sphere is a hypothetical model presented by Mr. Freeman Dyson in 1960. It is a hypothetical model in which we will mine the Mercury's surface and extract the raw materials and elements present on it. We will then use a conveyor belt and take it to the refinery. Over there, we will refine it, take out the raw material which we need, and turn them into solar panels, which will be launched by a launch pad towards the sun. This is basically a Dyson swarm. This is a web-like structure which will surround the sun. It will surround the sun and it will absorb almost 100% of its energy. This way we will be able to promote interstellar civilization. If we ever needed energy on Earth, we'll just transfer this energy from the Mercury's surface to the Earth. If we need energy on Saturn or Jupiter, we'll just take it there. This way we'll be able to promote. What is the name of the material from the Mercury surface? Material, actually those are many kind of elements. Some which we haven't discovered yet and some which we have discovered. And secondly, the DART, it was actually tried by NASA in 2022. If an asteroid is ever hitting Earth, we'll launch a rocket and it will just deflect its trajectory. This way we'll be able to put down this threat. If you any other kind of information if you needed it, thank you. Just in the booklet. अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्पाइन क्लब का मेंबर हूँ। तो इस साल हमारे 4 मेन प्रोजेक्ट थे। हमारा पहला प्रोजेक्ट आर्मी हाई एल्टीट्यूड स्कूल रतू में हमने ट्रेनिंग कंप्लीट किया। 8 दिन लॉन्ग ट्रेनिंग थी, तो हमने सक्सेसफुली ये कंप्लीट किया।
हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग था, जो हमने पाकिस्तान एल्पाइन क्लब के कोलैब्स किया पाकिस्तान एल्पाइन क्लब से, उससे हमने कंप्लीट किया ये ट्रेनिंग। थर्ड हमारा प्रोजेक्ट था राउंड स्केयर कॉन्फ्रेंस, हमने राउंड स्केयर कॉन्फ्रेंस हेल्ड कराई है, इससे हमने इंटरनेशनलिज्म प्रमोट किया है। फोर्थ प्रोजेक्ट था हमारा था पाकिस्तान ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, इसमें हमने केस स्टडी किया, इसमें 6 वुमेन थी और 66 वुमेन थी, तो उन्होंने सक्सेसफुली K2 कंकर किया है। तो इसमें केस स्टडी किया कौन कौन सोशल नॉर्म्स का कौन कौन सोशल नॉर्म्स फेस करनी पड़ी है, सो किस तरह सक्सेसफुली K2 कंकर किया है। ये हमारे फोर्थ प्रोजेक्ट थे और इस साल हमारा क्लब फर्स्ट आया और हमने इंटरनेशनलिज्म प्रमोट किया, हमने एडवेंचरिज्म प्रमोट किया, जो ग्राउंड से के आइडियल्स हैं। थैंक यू। माशाल्लाह जी, हमें तो बहुत आकर यहाँ खुशी महसूस हुई है। थोड़ा सा मौसम की वजह से अपसेट है माहौल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों ने और माशाल्लाह हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही कामयाब बनाए और हमारी दुआ है सारे बच्चों के लिए कि हमेशा मुस्कुराते और ऐसे मेहनत करते रहें। शुक्रिया। एक्चुअली एग्जीबिशन जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और मुझे लग रहा है कि बच्चे बहुत सक्सेसफुल होंगे आगे, और इस इंस्टीट्यूशन का और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का उसका ख़ास पुटअप किया हुआ है उन्होंने, किस तरह इन बच्चों को ग्रूम किया और ये सारी चीज़ें ना, ये विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर इंस्टीट्यूशन एंड अदर एडमिन्स। Assalamu alaikum. CCH is very prestigious institute. I just saw visit a whole exhibition. Everything is very nice and very disciplined. All the students are very obedient and hardworking. हर चीज़ बहुत अच्छी है और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, जिसकी वजह से बच्चों ने इतनी अच्छी हार्ड वर्क किया और सारा कुछ सब बहुत अच्छा है। थैंक यू। And proceed to the college mess for tea and refreshments. After tea and refreshment, only class second year boys and their parents will be here in main hall to attend the prize distribution ceremony. Thank you very much. Thank you for your cooperation. All are requested to please vacate the main hall and proceed to the college mess for refreshments. Thank you.